Good morning, students. From few classes of class 10th, we are discussing the chapter How do organisms reproduce, and from last classes we discussing the topic female reproductive system in plant, and last class we already completed the two important topic that we call pollination and fertilization. Pollination means the movement of male reproductive part that we call pollen grain from anther to stigma in the plant is called the pollination, and pollination is the method of the movement of male reproductive system to reach the female reproductive organ for the further fertilization. And second one is the fertilization means there is a fusion of male and female gamete in the flower is called the fertilization. And there are the pollination has two types, one which called the self-pollination and second one is the cross-pollination. Self-pollination means there is the fusion of a male and there is movement of anther to stigma. There are movement of pollen grain from anther to stigma in the same flower is called the self-pollination, and there is the movement of pollen grain from anther to stigma of the different plant or different flower of the same plant is called the cross-pollination. And today we discuss the most important topic that we call double fertilization. That we called double fertilization. And what is the meaning of double fertilization? Why it is necessary to the plant for the production of fruit and seeds and the flower? This we discussed in this class. And this is the female reproductive part of the female flower, which I already discussed in the last class. This is the stigma, and in this place pollen grain fall in the stigma and emerge the pollen tube-like structure, and this tube-like structure move from stigma to the female reproductive part through the micropylar region, because this is the chalazal region that we call chalaza, and this region is called micropyle. Okay, and through this tube the pollen grain comes from the stigma to the female reproductive part of the plant, and this is the ovary. Main part outer is this is ovary which forms the fruit, and this is the ovule which form seed, and these three eggs are called the female germ cell. Female germ cell. These two are called polar nuclei. These two are called polar nuclei. These polar nuclei lies to the center of the female reproductive part. These are the polar nuclei. These are the polar nuclei, and these are the female germ cell. These three are the female gamete, female gametes, and this is the pollen tube. This is the pollen tube emerged from the stigma and starts from the stigma to this part of the plant, and this is pollen tube in which two male gametes are present, in which one is fused with the female gamete
One is fused with the female gamete and second is fused with the polar nuclei. सेकेंड इज फ्यूज्ड विद द पोलर न्यूक्लियाई। ये दो मेल गैमेट, क्योंकि पोलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो दो जर्म सेल कंटेन करता है। इनमें से एक सेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज करता है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे मेल और फीमेल जो गैमेट फ्यूज कर रहा है, मेल प्लस फीमेल, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सिंगैमी। सिंगैमी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगैमी। एंड ये जो रीजन था वो माइक्रोपाइलर रीजन था, यहाँ बता चुकी हूँ मैं। ये सिंगैमी जो होता है, यही जो होता है वो जैगोट का फॉर्मेशन करता है। यही सिंगैमी जैगोट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये मेल gamete fused with the female gamete of this micropylar region to form the structure syngamy that we call zygote, and this second part goes to the polar nuclei. These are the two polar nuclei, and this structure attached with this structure. इसका सेकंड डायग्राम देखते हैं। ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पर जो इसका मेल गैमेट था, एक ये दो फॉर्म में था मेल गैमेट, एक तो इससे जाकर के फ्यूज़ होता है, सेकेंड जो है वो यहाँ जाकर के फ्यूज़ होता है। तो यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो अटैच्ड हो जाता है मेल गैमेट, और ये तो यहाँ पे जर्म सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ऊपर में भी जर्म सेल्स वगैरह प्रेजेंट था। तो ये जो फॉर्मेशन करता है ये 3N बनाता है, एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, तीन न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए? 3, इसीलिए इसको कहते हैं 3N। इसलिए 3N को जो कहते हैं उसको, इसका नाम है इंडोस्पर्म। इसको क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म, जो 3 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल था ये जाकर के अटैच्ड हो जाता है इस पार्ट से, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आकर के अटैच रहता है, जिसको कहते हैं 2N। यही 2N जो होता है वो जैगोट बनाता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रूट का निर्माण करेगा और ये आपका सीड का निर्माण करेगा। तो इंडोस्पर्म जो होता है वो सीड का निर्माण करता है और जैगोट जो होता है वो फ्रूट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये दो फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब कि एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इसके साथ हुआ, सिंगल फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन गोज टू द पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन कितना टाइम हुआ? 2 बार। एक हुआ माइक्रोपाइल रीजन पे मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, एंड सेकेंड वन इज द गोज टू द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। लेकिन यहाँ पर 2 थिंग है, एक होता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बना, 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले से था, लेकिन यहाँ पर तीसरा मेल जर्म सेल आकर के इससे अटैच्ड हो गया, तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 3। इसलिए इसको कहा जाता है 3 ट्रिपल फ्यूजन। तो क्योंकि 3 स्ट्रक्चर यहाँ आकर के एक दूसरे को फ्यूज कर रहा है, तो इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रिपल
फ्यूजन। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन मेल जर्म सेल गोज फ्रॉम द माइक्रोपोलर रीजन टू दैट ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई एंड फ्यूज्ड विद द बोथ पोलर न्यूक्लियाई, सो इट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम के साथ पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं कि फिर क्या होता है। प्रोसेस मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं। अब मैंने इसमें देखा कि दो बार फ्यूज़ किया, मतलब एक बार ट्रिपल फ्यूज़न हुआ और एक बार सिंगैमी हुआ। सिंगैमी जो होता है वो माइक्रोपोलर रीजन में हुआ जो कि फ्रूट का निर्माण करता है, और ट्रिपल फ्यूज़न जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ जो कि सीड का निर्माण करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, one sperm cell fertilizes the egg cell to form one sperm cell fertilizes the egg cell to form the zygote, जो कहाँ पर हुआ था? माइक्रोपाइल रीजन के पास हुआ था। वन स्पर्म सेल जो होता है वो फर्टिलाइज करता है एक सेल से, तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? जायगोट का, जिसको हम लोगों ने 2n से डिनोट किया था। while the other fuses with the two polar nuclei, while the other fuses with the two polar nuclei, दूसरा कहाँ फ्यूज कर जाके किया? जहाँ सेंटर पे दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट था। that form the endosperm, after fertilization the fertilized ovule after fertilization the fertilized ovule forms the seed, while the tissue of the ovary become the fruit। ठीक है, मतलब कि जो अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है या ट्रिपल फ्यूजन होता है, वो सारे मिल करके क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? सीड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो उसके बाहर का जो लेयर होता है, जो जर्म सेल्स वगैरह होते हैं, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा दो फ्यूजन्स हुआ ना। पहला आपका था ट्रिपल फ्यूजन, पहला ट्रिपल फ्यूजन हुआ एंड दूसरा हुआ सिंगैमी। ये सिंगैमी कहाँ पर हुआ था? जो कि जायगोट का फॉर्मेशन कर रहा था। कहाँ पर हुआ था? माइक्रोपाइल रीजन के पास हुआ था। और ट्रिपल फ्यूजन जो कहाँ हुआ था? ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ था, जहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट, तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है? ट्रिपल फ्यूजन बनाता है। तो आज आपका ये टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और मेथड्स वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आज के लिए थैंक यू।